चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया। कंपाउंड्स को इनिशियली क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि वो मिलता कहाँ से है। अगर हम अर्ली कॉन्सेप्ट की बात करें, अबाउट 200 years ago compounds were classified on the basis of their origin। अब कंपाउंड का जो ओरिजिन है वो दो ही तरह का पॉसिबल है। या तो आपको कंपाउंड मिल रहा होगा लिविंग थिंग से, या कंपाउंड मिल रहा होगा नॉन लिविंग थिंग से। अगर कंपाउंड का ओरिजिन लिविंग थिंग हो तो उन कंपाउंड्स को हम नाम दे देते ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर कंपाउंड का ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग्स होता तो उन कंपाउंड्स को हम नाम दे देते इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। अगर लिविंग थिंग्स ओरिजिन है तो कंपाउंड्स को नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स ओरिजिन है तो कंपाउंड को नाम दे दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब साइंटिस्ट का एक कॉन्सेप्ट बन गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से मिल सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से मिल सकते हैं तो इस बेस पर एक साइंटिस्ट है जे बर्जीलियस ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई, दैट थ्योरी नाउन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू जे बर्जीलियस, देयर इज impossible to prepare organic compound in laboratory. We cannot prepare organic compound in laboratory because organic compounds are present in living things, and for the preparation of living things a vital force is required, a mysterious force is required, and human beings don't have this force. So according to J. Berzelius, human beings don't have vital force, human beings don't have mysterious force, so they cannot prepare living things, so they cannot prepare organic compound in laboratory. This theory was introduced in 1815. After 13 years, in 1828, a scientist Frederick Wooler rejected vital force theory. How Frederick Wooler reject vital force theory? Frederick Wooler prepared urea in laboratory. How urea is prepared? He mixed potassium chloride, potassium cyanate and ammonium chloride. By their mixing, you get ammonium cyanate and potassium chloride. When ammonium cyanate is heated, it will convert into urea, and urea is organic compound. It is prepared in the secretion of mammal as it is organic compound, but Frederick Wooler prepared this organic compound in laboratory. So he rejected vital force theory. According to vital force theory, for the preparation of organic compound, a vital force is required, and human beings don't have vital force, so human being cannot prepare organic compound in laboratory. But Frederick Wooler said that no vital force is required, no mysterious force is required for the preparation of organic compound. So he prepared organic compound in laboratory and reject vital force theory. After that, billions of organic compound prepared in laboratory, and we introduce a new branch of chemistry known as organic chemistry. अब जो डेफिनेशन थी कि कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो डेफिनेशन तो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिल रहे थे वो तो नॉन लिविंग थिंग से भी मिल गए। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक नए तरीके से डिफ़ाइन किया, और मॉडर्न साइंस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई। और वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स
and their derivatives are called organic compound. अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव से क्या मुराद है? वो कंपाउंड जो हम यहाँ से ड्राइव करेंगे, दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. लेट्स सी सम एग्जांपल. In hydrocarbon, you have methane, ethane, propane. These are compound of hydrogen and carbon, so they are called hydrocarbon. Hydrocarbon are called organic compound. And derivatives of hydrocarbon से क्या मुराद है? वो कंपाउंड जो आप हाइड्रोकार्बन से ड्राइव करेंगे. दिस इज वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन. अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद क्लोरीन, so a new compound is obtained, but this compound is derived from hydrocarbon, so this is also called organic compound. Similarly, when hydrogen is replaced by nitro group, this compound is also organic compound because it is derived from hydrocarbon. Similarly, when you replace all the hydrogen with chlorine, you get this one. This is also derived from hydrocarbon, so it is also organic compound. So what are organic compound? Hydrocarbon and their derivatives are called organic compound. इन्हें चाहे लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करें या नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएंगे. यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर करना बहुत ज़रूरी है. हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बात का ध्यान में ये बात आती है कि हाइड्रोजन का होना भी ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. नो, यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय क्लोरीन, इट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. So we can say that hydrogen is not essential element of organic compound. Hydrogen is not essential element of organic compound. तो कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है? कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन का होना ज़रूरी है, और अगर कार्बन नहीं है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होगा. इसका मतलब कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट रिमेंबर दैट ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट ऑर्गेनिक. कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की शर्त यह है कि कार्बन हो, लेकिन अगर कंपाउंड में कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक हो, ये ज़रूरी नहीं है. सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट प्लेस्ड in organic category. Why? What is the reason behind why compounds of carbon are not placed, some compounds of carbon are not placed in organic category? Because their properties do not match with organic compound, and conventionally शुरू से ही ये चलता आ रहा है कि उन्हें ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं रखा गया. वो कौन से कंपाउंड है? कंपाउंड है कार्बन के, लेकिन ऑर्गेनिक कैटेगरी में नहीं रखा गया. फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड. कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स आर मेटेलिक कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं ये. फॉर एग्जांपल यू हैव सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट एंड मैनी मोर. बाइकार्बोनेट्स, potassium bicarbonate, sodium bicarbonate and many more. Hydrogen cyanide, these are compounds of carbon, but they are not placed in organic compound because their properties do not match with organic compound. Hydrogen cyanide and all metallic cyanide, all metallic cyanide were not placed in organic category. Sodium cyanide, potassium cyanide and many other cyanide. So all compounds of carbon are not considered as organic compound because their property do not match with organic compound, and they were not conventionally placed in organic category. So we can say that compounds of carbon except oxide, carbonate, bicarbonate, हाइड्रोजन साइनाइड, मेटेलिक साइनाइड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो कार्बन के तमाम कंपाउंड सिवाय
कार्बन के ऑक्साइड के, कार्बन के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन साइनाइड और मेटालिक साइनाइड के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, उन्हें हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। इन अदर वर्ड, branch of chemistry which deals with compounds of carbon except oxide, carbonate, bicarbonate and cyanides of carbon। सवाल ये है कि हमें ये केमिस्ट्री की अलग ब्रांच इंट्रोड्यूस क्यों करवानी पड़ी, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। कार्बन के कंपाउंड की तादाद क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू कैटिनेशन। What is catenation? Catenation is self-linkage property in which carbon atom combine with other carbon atom and produce variety of compound। कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करते रहते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं विद वेरियस चेन लेंथ। दिस कंपाउंड मे बी ऑफ 2 कार्बन एटम, मे बी ऑफ 3 कार्बन एटम, मे बी ऑफ 4 कार्बन एटम, मे बी कंपाउंड्स आर रिंग। ड्यू टू दिस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कार्बन के एटम का आपस में मिल जाना और वेरियस चेन लेंथ वाले या रिंग कंपाउंड बनाना, इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा बनी और जिसकी वजह से हमें अलग ब्रांच डिज़ाइन करनी पड़ी। इसको हमने नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई कार्बन शो कैटिनेशन। कार्बन ही कैटिनेशन क्यों शो कर रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? अदर मेंबर क्यों नहीं शो करते और ग्रुप के मेंबर क्यों नहीं शो करते? तो नंबर 1 पॉइंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। तो कार्बन जिस ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में, उसके भी तो बाकी मेंबर टेट्रावेलेंट है, बिल्कुल है। तो वो क्यों नहीं कैटिनेशन शो करे? रीज़न ये है कि उनका साइज बड़ा है। जब उनका साइज बड़ा है तो उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी बनेगी, बॉन्ड वीक बनेगा। उनमें ज़्यादा एटम अगर वो आपस में जुड़ जाएंगे तो वो वीक बॉन्ड होगा और वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ज़्यादा उनका कंपाउंड का स्टेबल रहना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से कार्बन के एटम आपस में बॉन्डिंग करते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्टेबल होगा, कंपाउंड भी स्टेबल बनेगा और लॉट ऑफ कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। इस वजह से सिर्फ कार्बन ही प्रॉपर कैटिनेशन शो करता है। अगर बाकी कोई एटम कैटिनेशन शो भी करता है, उससे बनने वाले कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।